वो उसने वहां पर फेयर दिया है, पैसे देकर फिर उसमें चढ़ा है। So he went down, he paid the fare, bought a ticket, and then he got into it. खुदावन की पाक हजूरी से दूर भागने से प्राइस पे करना पड़ता है। Many times when you run from the presence of God, you have to pay the price. देखो शिप रेडी है, The ship is ready, पर जो है भुगतान करना पड़ेगा। but you have to pay the price. जिसको जो है वहां पर लिखा है, जैसे वो गया तो भाड़ा देकर वहां पर चढ़ गया है उसमें। And so it's written, as he went there, he found the ship, he paid the fare, and he got onto the ship. खुदावन की पाक हजूरी से दौड़ने से भागने से जो है बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। If you run from the presence of God, if you run away from his will, you have to pay a huge आगे price. जाके पढ़ते हैं कि उसने सिर्फ यहाँ पर ही भुगतान नहीं किया है, Later we read, he doesn't just pay the price here. उसकी वजह से वो पूरे शिप की हालत खराब हो रही है। It's because of Jonah's disobedience that the whole ship is in jeopardy. पूरे उस समुद्र में जो है बड़ा तूफान आ रहा है। There's a huge storm in that sea. मरीन वाले, जो बोट चलाने वाले, जो सेलर्स थे, वो जो चलाने वाले, वो सब जो है बड़े खौफजदा हो रहे हैं। And so the mariners, those who were handling the ship and giving direction to it, were very frightened. एक शख्स की उस नाफरमानी की वजह से Because of one man's disobedience, उन सबको कीमत अदा करनी पड़ रही है। everyone is having to pay a price. पढ़ते हैं आगे जाके हमें पता चलता है Let's read further, we find कि out. वहां पर तूफान आ गया है शिप में और पूरे उधर समुद्र में। We read about how the ships get rougher and there's a huge storm. उनको कितना सामान समुद्र में फेंकना पड़ रहा है। And they need to unload and offload all the goods from the ship. कितना कुछ उन्होंने अपना सामान समुद्र में फेंका है। And so they take a lot of their goods and they throw it into the sea. खुदावन की हजूरी से दौड़ने से जो क्या होता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। When you run from the presence of God, you have to pay the price. You remember जब दाऊद ने गुनाह किया, आपको याद है when David sinned? वो खुदावन से ये कहते थे, This is what he would tell God. खुदावन मुझसे अपनी पाक रूह मत छीन। Do not take your Holy Spirit from me, O Lord. Create in me a clean heart. मुझ में एक साफ पाक दिल बना. ज़बूर 51 में वो कन्फेशन उसका जो है, रिपेंटेंस जो है दर्ज है उसकी। You will find the repentance and the confession of David in Psalm 51. दाऊद किस तरह से वो विनती करता है, उसको पता है कि खुदावन की पाक हजूरी से दूर जाना कितना जो है खतरनाक है। You hear David's heart cry, his prayer to God, because he knows to go away from the presence of God is very dangerous. खुदावन की हजूरी से उलट जाना, उसके बरखिलाफ जाना जो है कितना जो है दुखमयी बात है। To run away from the will of God, to turn your back on God is a very tragic thing. आगे जाके हम पढ़ते हैं यहाँ पर जोना जो है सबके लिए तूफान लेकर आया है। And so we read here that Jonah has brought a storm for everybody. वहां पर वो सब अपने अपने खुदावन को, अपने अपने परमेश्वर को जो है पुकारने लग गए हैं। And so they begin to call out to their own gods. All of them begin to call out to different gods. सब लोग जो है प्रेयर करनी शुरू कर दी। All of them begin to pray. जैसे शिप जो है डूबने पर है तो सब ने दुआ करनी शुरू कर As दी। the ship begins to sink, everyone begins to pray. जिसने कभी दुआ नहीं करी वो भी उस दिन दुआ कर रहा है। Those who have never prayed before begin to pray on that day. कुछ लोग मुसीबत में ज्यादा चिल्ला के दुआ करते हैं। Some people begin to cry out to God louder when they're in trouble. अब पढ़े जाके कि जिस दिन जो है हर शख्स जो शिप में है पूरे के पूरे जो है वो जो दुआ कर रहे हैं। You can go ahead and read. It says that every person in that ship was praying that day. जो लोग वेकेशन पर भी जा रहे थे वो भी दुआ कर रहे थे वहां Those पर। who were on a vacation, they also were praying. जो बिल्कुल जिनको कभी दुआ की जो है फिक्र नहीं थी, दुआ करने की कभी ध्यान नहीं था, वो सारे के सारे दुआ कर रहे थे। And those amongst them who had never thought about prayer, never worried about prayer, are beginning to pray now. उन सब में एक ही जना दुआ नहीं कर रहा था। And amongst all of them, there is just one man who's not praying. जोना नबी, It's the prophet वो Jonah. आराम से अपने बिस्तर में सो रहा है। He is sleeping away. उसको पता है कि वो खुदा उनके उलट जा रहा है। He knows he's going against जब God. सब लोग प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं, While everyone else is having a prayer meeting, उन्होंने देखा कि जोना जो है खराटे ले रहा है। they realize that Jonah is snoring away. उन्होंने जाके जोना को उठाकर पूछा, And so they woke Jonah up and they asked him, भाई आप क्यों नहीं दुआ कर रहे हैं? Brother, why aren't you praying? क्यों नहीं आपके अंदर से जो है क्यों नहीं निकल रही है दुआ? Why is it that prayer is not coming out from you? जब आप खुदावन की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, When you go against the will of God, फिर दुआ नहीं निकलती है, then you cannot pray. फिर प्रेज नहीं निकलता You है, cannot praise फिर God. स्तुति नहीं निकलती You है, cannot worship Him. प्रस्तिश नहीं होती है, You cannot adore Him. फिर दुआ निकलती नहीं, पता नहीं क्यों। You cannot pray. Don't know क्योंकि why. खुदावन की मर्जी के खिलाफ जाने से दुआ नहीं निकलती है। Because when you go against the will of God, your prayer life is affected. You cannot दुआ pray. करने के लिए आपको अपना चेहरा खुदावन की ओर मोड़ना पड़ता To है, pray, you have to turn your face to God. खुदावन की ओर
ताकना पड़ता You है, need to look at God and gaze upon Him. खुदावन की ओर निहारना पड़ता You है। need to gaze upon the जब Lord. उसकी ओर हम ताकते हैं, When we look at the Lord, बाइबल कहती है ज़बूरों में, it says in the Psalms, जितनों ने उसकी ओर ताका है those who looked upon Him, those who gazed upon वो Him, कभी शर्मिंदा नहीं they were हुए। not ashamed, उनके चेहरे उसकी नूर से, उसकी रोशनी से भर but गए their हैं। faces were radiant with His light. जितने खुदावन की ओर देखते हैं, Those who look upon the Lord, खुदावन उनकी सुनता है। God listens to their cry. पाकला में लिखा हुआ है, It says in the जो Bible, खुदावन को पुकारते हैं, those who cry out to God, खुदावन उनकी सुनता है। God hears them. टूटा और पीसा मन खुदावन तुच्छ नहीं जानता God है। does not despise a broken and a contrite spirit. खुदावन के पाकला में ज़बूरों में लिखा है, It says in God's word in the Psalms, मैंने खुदावन की ओर दुहाई दी I cried unto the Lord, और उसने मेरी दुहाई को सुना and He heard my और voice, उसने मेरे को उत्तर दिया है and He answered me, और मेरी जान को उसने जो पताल से बचा लिया है। and He has saved me from the grave. जब हम खुदावन को पुकारते हैं, When we cry out to God, उसकी ओर ध्यान करते हुए, when we pay attention to उसकी ओर Him, ताकते हुए, when we look unto Him, तब खुदावन हमारी सुनता है। that's when God listens to जब हम us. खुदावन की ओर बैक करके, उसकी ओर पिछवाड़ा करके हम दुआ करते हैं, But if we turn our backs to God and then pray, खुदावन की मर्जी के उलट दुआ करते हैं, when we go against the will of God and खुदावन pray, की आवाज सुनाई नहीं देती we है। cannot hear His voice. खुदावन हमारी ओर ताकता नहीं है, God does not look upon हम us. उसकी ओर ताकते नहीं We हैं, don't look at Him, तो वो हमारी ओर देख नहीं so सकता He है। does not look at us. यशायाह 59 उसकी पहली दो पंक्तियों में लिखा हुआ है, It says in Isaiah 59 in the first two verses, खुदावन का हाथ छोटा नहीं कि हम तक पहुंच ना सके, God's hand is not short that He cannot reach, उसके कान भारी नहीं हो सके कि वो हमारी दुआओं को ना neither सुने। are His ears deaf that He cannot hear our prayer. तुम्हारे और खुदावन के बीच में एक दीवार है, But there is a wall between you and God. तुम्हारे अधर्म की वजह से खुदावन तुम्हारी सुन नहीं It सकता is है। because of your sin, your unrighteousness, that God will not hear your कभी prayer. कभार हम दुआ करते हैं पर खुदावन की ओर मुड़ते नहीं है, Many times we pray, but we don't turn to the खुदावन Lord. की ओर ध्यान नहीं करते We हैं, don't pay attention to खुदावन Him. की मर्जी को नहीं सुनते We हैं, don't ask for God's हम will. अपनी मर्जी में अटके रहते हैं We become stubborn in our own और will, वहीं पर वो दुआ करते रहते हैं। and we keep on praying our पर will. कभी कभार खुदावन सिर्फ हमारी दुआ को नहीं देखता, But many times God does not just listen to our वो prayer. देखता कि हम कैसे उसकी तरफ पोजीशन करते हैं, He looks at how are we positioning कैसे उसकी ourselves ओर before ध्यान Him. करते हैं, Are we turning to Him कैसे and paying उसके चेहरे attention की to ओर Him? देखते Are we हैं। seeking His face? जब हम उसके चेहरे की ओर देखते हैं When we seek His तो face, वो बोलता है then He speaks. तो हम सुन सकते हैं। That's when we hear. जब हम सुनना नहीं चाहते हैं When we don't want to तो hear, हम उसकी ओर ताकते नहीं then we हैं। don't seek His face. खुदा उनके पाकला में लिखा है, It says in God's word, seek and you shall find। खोजो, ढूंढो और तुम जब हम पाओगे. उसको ढूंढेंगे वो डेफिनेटली मिल जाएगा। When we search for the Lord and seek Him, जब- He will be found जब by हम us. खटखटाएंगे हमारे लिए खोल देगा, When we knock unto that door, it will be open जब to us. ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। When we search for it, we will find. जो ना उस रात या उस दिन जहां का भी वक्त था वो सो रहा था, ढूंढ नहीं रहा था खुदावन को। That day, whether it was night or day, that time in the ship, Jonah was not praying, he was sleeping. उसकी वजह से एक तूफान आया है। Because of him, there was a storm. जिंदगियों में तूफान आता है, In our lives, there are many storms. फर्क फर्क तरीके से तूफान आते हैं। There are different kinds of storms that come to us. कभी कभार वो हमारे फायदे के लिए होते हैं। Sometimes those storms are for our benefit. 3 तरीके के तूफान होते हैं इस इंसान की जिंदगी में आते हैं। There are 3 kinds of storms that come to a person's life. कुछ ऐसे तूफान होते हैं जो आपको बचाने के लिए होते हैं। There are some storms that are protecting storms. वो ऐसे होते हैं जहां पर आप खुदा की नजदीकी में आते हैं। Those are storms that draw you closer to God. वो ऐसे होते हैं जो जिस वक्त आप खुदावन की ओर मुड़ जाते हैं, Those are times when you turn towards God. वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। And those are storms to protect you. एक बार प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहे थे। Once the Lord Jesus was preaching to a huge crowd. 5000 से ज्यादा लोगों को खाना There were खिलाया, more than 5,000 people. He just fed them. खाना खिलाया, मछली खिलाई, सब लोग खाए हैं। He fed them bread and fish. Everyone ate their full. सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, Everyone was real excited. बहुत जोश आ गया उनके अंदर। They were full of zeal. सब लोग कहें जीसस के पास जो हैं चले गए वो लोग, And they all started following Jesus. उनको पकड़कर जो हैं वो राजा बनाना चाह रहे And they हैं। want to make him their king. वो कहते हैं हम आपको बादशाह बनाना चाहते They say, हैं। we want to make you our king. जीसस को पता है वो क्यों बादशाह बनाना चाह रहे हैं। Jesus knows why they want him to become king. वो फिश जो है फ्राई खाई हुई थी, It's because
because they'd eaten fried fish. वो जो नान बड़े अच्छे लग रहे थे And the उनको। naan that they ate was तो excellent. जीसस उनको पता था कि क्यों राजा बना रहे हैं। And Jesus knew why they want him to be king. वहां से अपने आप को और शिगिर्दों को उन्होंने जो है वहां से निकाल लिया है। And so what he did, he separated himself and the disciples from that उन्होंने crowd. पुश करके अपने शिगिर्दों को जो है गलील की झील में भेज दिया है। And so he pushed his disciples and said, go on to the lake. और कहा चलो हम उस पार चले। And he says, let's go to the other side of the Sea of इस Galilee. पार जो है कुछ और काम हो रहा था। Because on this side, something else was going क्योंकि on. लोग जो है उनको जबरदस्ती से बादशाह बनाना चाहते थे। It's because the people were forcefully wanting to make him king. पर वहां पर जो है वो झील की ओर खुदावन उनको ले जाते हैं। But Jesus takes them to the lake of Galilee, पर उस झील में तूफान आ जाता है। and there's a storm in that lake. और तूफान उनको बचाने के लिए है। And that storm was to protect them actually. वो तूफान जो है उनको सिखाने के लिए था। It was a storm that was going to teach them. वो तूफान उनकी जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट लाने वाला Because था। that storm was going to become a turning point for their अगर वो life. उसी पार रहते, If they stayed on that लोग first उनको side, जबरदस्ती से बादशाह बनाते, and the people would forcefully make him king, उनके शिगिर्दों को कुछ कुछ कह देते, they would give positions and give authority to the तो disciples, सब कुछ कार्नल फ्लैशली शरीर को हो जाता। then everything would be fleshly and carnal. पर यीशु मसीह उनको उस पार लेकर जाते But हैं। Jesus takes them to the other side, तूफान तो उससे से गुजर रहे हैं, and they're going through a storm, पर वहां पर खुदावन यीशु उनके साथ है। but with them is Jesus in that storm. जो तूफान खुदावन के इसकी ओर से आते हैं, Those storms that are from God, उसमें खुदावन यीशु आपके साथ होते हैं। those are the ones in which Jesus are with जो you. खुदावन की ओर से मुकर्रर किए होते हैं, Those storms that are from God, उस समय खुदावन की पाक हुजूरी आपको छोड़ती नहीं है। that's when the holy presence of God does not leave you. उस तूफान में In that storm, यीशु उनकी नाव में थे, Jesus was in their boat. उनके साथ थे, Jesus was with them, उनकी प्रेजेंस उनके साथ थी। and his presence was with them. अगर उस तूफान में यीशु आपके साथ है, If in a storm Jesus is with you, अगर तूफान में उसकी प्रेजेंस आपके साथ है, if in the storm of your life Jesus' presence is with तो you, फिर आपको डरने की जरूरत then you नहीं don't है। need to be afraid. कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, Let it be the biggest storm. क्योंकि यीशु आपके साथ है। Jesus is with you. Would you say amen? Amen. ऐसे तूफान में आप नाश नहीं होते हैं। In those storms, you don't get ऐसे destroyed. तूफान में आप खत्म नहीं होते हैं। In those storms, you don't get finished. उसमें आप मिरेकल को देखते हैं। You see a miracle in that उस storm. समय आप मौजों को देखते हैं। You see mighty wonders. उसमें आप देखते हैं खुदावन तूफान को कैसे डांटता है। In that, you see the Lord rebuke the storm. उसमें खुदावन आपके फेथ को बढ़ाता है। In that, God increases your faith. उस तूफान में आप मैच्योर होते हैं। Through that storm, you become mature. आप नेक्स्ट लेवल में जाते You हैं। go to the next level. आपकी लाइफ जो अपग्रेड होती है, Your life gets upgraded. आप डूबते नहीं बल्कि आप ऊपर की ओर जाते You हैं। don't sink, you go up. कुछ तूफान खुदावन आपको सिखाने के लिए रखता है, Some storms are sent by the Lord to teach us. इसलिए उसमें खुदावन के साथ बने रहना है हमें। And that's why we need to remain in the Lord in those हमारी storms. जिंदगी में तूफान आते हैं ऐसे कुछ In our lives, there are many storms. जो आपको खुदावन की ओर खींच लेते हैं कभी कभार, Those that draw you to God. जिसमें आपकी प्रार्थना की जिंदगी और मजबूत हो जाती है, Through them, your prayer life is strengthened. उसमें और भी आपका भरोसा उस पर बढ़ जाता है, And your trust and faith in God is उसमें increased. आप और खुदावन के साथ लोलीन हो जाते हैं। In that, you become more devoted to God. उस तूफान में खुदावन के साथ बने रहिएगा। In that storm, please remain in God. Would you say amen? Amen. दूसरे तरह के तूफान जो होते हैं, The second kind of storms that come to you, जिसमें खुदावन आपको परिपक्व करता है, those are storms that God uses to perfect you. वो आपको उसमें आपको मजबूत करता है, He strengthens you, जिसमें आपको सिद्ध बनाता है। He perfects you. पाकला में पढ़े उत्पत्ति किताब में जोसेफ की जिंदगी में कितने तूफान आते हैं। If you read in the Holy Scriptures the life of Joseph, how many storms he faced. उसको विजन मिला खुदावन की ओर से, He got a vision from the Lord. खुदावन उसको सपनों से बात कर रहे हैं, Lord is speaking to him through dreams. खुदावन उसे रूबरू जो है बातें को सिखा रहे हैं। And the Lord is speaking to him face to face. उसके भाई उसको पकड़ते हैं, And so his brothers catch hold of him. मारना चाहते हैं, They want to kill him. खत्म करना चाहते They हैं, want to destroy बड़ा him. तूफान है जिंदगी में उसकी That's a जिंदगी। huge storm in his life. फिर वो एक कुएं में फेंक देते हैं, Then they throw him in a pit. फिर उसके बाद फिर उसमें से निकाल कर उसको बेच देते हैं। And then they draw him out of the pit and they sell him like a slave. ये सब जो है वो उसके खिलाफ कर रहे हैं। All this is happening बड़ा against Joseph. तूफान है उसकी जिंदगी में, And there is this huge storm in his life. पर इन सब के अंदर But in all those storms, खुदावन यूसुफ को तैयार कर रहा था। God is preparing and perfecting आने Joseph. वाले जो सालों की तैयारी कर रहा था, God was preparing him for the years ahead. खुदावन सिर्फ ना यूसुफ के लिए,
not just for Joseph, पर पूरे इस्राएल का इंतजाम कर रहा था। but God was providing for all of Israel's future. आने वाले सालों में अकाल पड़ने वाला था, There was going to be a huge famine, a drought in the वो years to सब come. का इंतजाम यूसुफ कर रहे थे। And through Joseph, the preparation was being made for all of that. उस तूफान में खुदावन हमें परिपक्व करता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता And है। so these storms are what God uses to strengthen us and to perfect us. तीसरे तरह के तूफान जो हमें करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए होते हैं, The third kind of storms are correcting storms. जो जोना की जिंदगी में आए हैं। That which came in Jonah's life. ये उनको सिग्नल दिया गया है This was a signal to Jonah. कि जोना, ये तूफान जो है तुम्हें कुछ कह रहा है। Jonah, this storm is saying something to you. जोना को कुछ सिखा रहा है तूफान। The storm is teaching सब Jonah. लोग दुआ कर रहे थे, Everyone was praying. जोना आराम से सो रहे थे। Jonah was busy sleeping. इवेंचुअली जोना उनके सामने कन्फेस करता है And so eventually Jonah confesses the कि truth. ये मेरी वजह से तूफान आया है, That the storm is because of me. ये मेरी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। All this loss and damage is because उनको of me. खुद ही कहते हैं जोना, And so Jonah says to them, मुझे इस तूफान में फेंक दो, throw me into the storm. मुझे समुद्र में फेंक दो, Throw me into the sea. क्योंकि उसे पता चल गया है, Because he knows. क्योंकि वो नबी है, Because he's a वो prophet. जानते हुए खुदावन की मर्जी की नाफरमानी कर रहा था। Knowingly, he has gone against the will of वो God. अज्ञानता से नहीं, Not because he was ignorant, बल्कि वो जानते हुए कर रहा था। but intentionally. उसे तूफान से डर नहीं था, He was not scared of the क्योंकि उसे storm. पता था ये तूफान उसको तब्दील करने के लिए है। It's because he knew this storm will transform उसको him. पता था ये तूफान उसके सुधार के लिए है। He knew this storm was for his betterment, his कुछ correction. तूफान हमें सुधारते हैं, There are storms in our lives that correct वो us. सिग्नल होते हैं Those are signals ताकि हम खुदावन की ओर मुड़े। so that we would turn towards God. कुछ दुख मुसीबत इसलिए भी आती है कि हम खुदावन की ओर मुड़े। Some difficulties and some troubles come so that we would come to the कुछ Lord. सफरिंग इसलिए भी आती है कि हम खुदावन की ओर खींचे चले आए। There are certain sufferings that God sends that we would be drawn toward Him. क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा था We learned the last time, कि जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं those who love the Lord, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती for हैं। them all things work for the good. ये तूफान भी उसके फायदे के लिए था। This storm was for His good. जैसे तूफान में उसे फेंक दिया गया, As he was thrown into the storm, एक मच्छी खुदावन ने तैयार करी है। God had prepared a fish, वो मछली जो उसे जो है निगल लेती है। and this big fish swallows him. तो आप जोना की किताब पढ़ें So read the book of Jonah. कि 3 दिन 3 रात वहां पर रहे हैं। So he stays in the belly of the fish 3 days and 3 nights. वहां पर फास्टिंग चल रहा है अभी। He is fasting. पहले तो दुआ भी नहीं कर रहा था, Earlier he was not even willing to pray. अभी वो दुआ भी कर रहा है। अंदर आप उसकी दुआ भी पढ़ें, उसकी बड़ी डीप दुआ है अभी उसके अंदर। And now within the whale, within that fish, he is praying. You read his prayer. It's a very deep prayer. 3 दिन 3 रात ना तो खाना मिल रहा है और ना पानी मिल रहा है। For 3 days and 3 nights, he is without food, without water. फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग चल रही थी। He is fasting and praying. He's having his prayer कभी meeting. कभार हम नहीं करते तो खुदावन ऐसे जो हैं रास्ते तैयार कर देता है फास्टिंग एंड प्रेयर के। Many times when we don't fast and pray, God makes a way for fasting and वहां पर praying. जो है खुदावन जोना को जो है एक तैयारी करवा रहे हैं। So God is preparing Jonah through that. आप सोच लो, मछली जो है दूर से इतनी बदबू मारती है तो अंदर से क्या हाल होगा You उसका। can imagine a fish stinks so much from the outside. On the Right. inside, it stink. वो दूर दूर से उसकी स्मेल इतनी होती तो अंदर से जो है जोना क्या हाल है, फिर कांटे के साथ उसको अंदर रहना है। And so from the outside, a fish is so smelly. Imagine being inside where Jonah has to be. पूरी ड्राई क्लीनिंग हो रही है जोना की वहां। Jonah is getting dry cleaned. उसको बिल्कुल मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात जो घुमाया जा रहा है। And he's being swirled around in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. जैसे वो बाहर आते हैं वहां से, As he comes out of there, रेडीमेड प्रॉफिट तैयार था उस समय पे। he becomes a ready-made, a good-to-go prophet. कभी कभार जब हम तैयार नहीं होते हैं Many times when we're not ready, तो खुदावन ऐसे शिकंजे में डालते हैं कि हम तैयार हो जाएं। फिर God puts us in such a circumstance that we get कुछ prepared. तूफान हमें ठीक करने के लिए होते हैं, Some storms are sent to correct us, सुधारने के लिए, to improve us, डांटने के लिए, to rebuke us, रोकने के लिए, to stop us, समझाने के लिए। to explain to us. अगर उस टाइम भी हम ना सुने And if we don't listen to God's voice even then, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। then nothing can be done for अगर us. तूफान का शोर भी सुनाई नहीं देता तो फिर कोई शोर हमें नहीं बचा सकता। If you cannot hear the noise of a storm, then you cannot hear any थैंक sound. गॉड जोना ने उस तूफान में रिपेंट किया, तौबा करा और खुदावन के पीछे मुड़ा है वो। But praise be to God that Jonah repented, he heard God's voice and he turned around to the Lord. खुदावन हमारी सहायता मदद करे।
May God help us कि हम जोना की मानद उसके उलट नहीं बल्कि खुदावन की ओर मुड़े, that we would not be like Jonah, running away from God, turning our back to God, उसकी आवाज but we को would be turning towards Him, उसकी आवाज को सुने, that we would be listening to His voice, खुदावन की आवाज को सुन के उसके पीछे चल पाए हम लोग। that we would hear His voice and follow Him. प्यारे अज़ीज़ों, मैं पास्टर जितेंद्र पी गिल आप सबका बैतलहम पंजाबी चर्च में स्वागत करना चाहता हूँ। डाइवर्स कल्चरल के लोग यहाँ पर हैं और संगत जो है बहुत ही ज़्यादा अब जो एक्साइटेड संगत है, जिसमें फ़र्क वर्ग के लोग हैं, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, और वर्शिप इज़ फैबुलस। जो आराधना की टीम है बड़ी पावरफुल है। My name is Deacon Peter Cook, and I enjoy coming to the house of God to worship. I enjoy feeling the Spirit of God here. This is a multicultural environment. बैतलहम यानी रोटी का घर, लहम यानी रोटी, बैत यानी घर, और ये जो घर है ये रोटी का घर है, और वो रोटी जो जिंदा मसीह के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आई है, वो रोटी जिसको हम खुदा का कलाम कहते हैं। और मैं पास्टर जितेंद्र की ज़िंदगी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि वाकई ही एक खालस खादम है। खुदावंद का रूह इन पर है। खुदावंद के कलाम को उसमें किसी किस्म की मिलावट ये पसंद नहीं करते। एंड आई रियली एंजॉय, मुझे बहुत ही मज़ा आया बैतलहम पंजाबी चर्च में आकर। सच में वो स्वर्ग के बहुत करीब है ये चर्च। And I want to let you know that you have a wonderful man of God to lead you in the direction that the Lord is taking you. और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावन ने आपको एक ऐसा अगुवा दिया है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी अगुवाई करके खुदावन की दिशा में आपको बढ़ा सकता है। और मैं इस चर्च को खुद रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप कहीं नहीं जाते हैं, प्लीज़ कम टू बैतलहम। ये सिर्फ पंजाबियों के लिए नहीं है, ये चर्च का नाम पंजाबी चर्च है, लेकिन ये चर्च यीशु मसीह का चर्च है, और ये इसमें हर भाषा, इट्स एन इंटरनेशनल चर्च। प्लीज़ कम। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्जुमा होता है, और खुदा का रूह यहाँ पे काम करता है।